As Eleanor Roosevelt once said, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. And none of this would have been possible without the dedication of our wonderful moderators, Saurabh Singh, Mr. Shubham Tiwari, Mr. Ajay Gupta, Mr. Shailendra Rathod, Ms. Samriddhi Kanpal, and Mr. Manthan Tarale, and the constant guidance and encouragement of Dr. Manish Karmawar, whose support continues to nurture and grow this series. On the occasion of International Women's Day, I want you to imagine something. Imagine waking up in the morning and trying to make coffee, but the coffee filter invented by Melita Benz does not exist. It starts raining outside, but the windshield wiper created by Mary Anderson is missing, and the road ahead becomes unclear. You open your laptop to study or connect with the world, but there is no Wi-Fi technology, which is invented by the work of Hedy Lamarr. And the programming innovations that help computers understand humans, developed by Grace Hopper, were never written. Suddenly, the world feels slower, quieter, and incomplete. Because behind many ordinary things we use every day, there is often an extraordinary woman whose idea quietly changed the world. Women are not only the heart of families, they're also the minds behind innovation, courage, and progress. But celebrating women should not be limited to just one day. It should be seen in how we respect their dreams, support their education, and give them equal opportunities. And to all the women, choose yourself today and every day. Swipe on that bold lipstick, wear that dress, open that book, chase that degree, do it all for you. Because your dreams, your courage, and your fire deserves to shine brighter than anyone else's expectations. Because the truth is simple. Nari se hi srajan hai, nari se hi sansar hai. And without women, the world may not exist. Moving forward, now I would like to invite our guest of honor, Ms. Vasundhara Singh. She's a PhD scholar in political science at the University of Delhi and a guest faculty member at NCWeb Kalindi College. A dynamic researcher and content strategist, she has authored published works on cultural diplomacy and the Bhagavad Gita. With experience as a media representative on national news channels and as a host of over 100 events, she is a skilled public speaker and socio-political moderator. Her leadership experience includes serving as the president of Kalindi College Students Union, reflecting her commitment to academic and extracurricular excellence. Ma'am, I request your permission to start the program. Thank you so much, Manvi ji, and all respected members of GSTS. Uh, Manish sir, I am so thankful for you to have provided me this platform. All the more as guest of honor, I am so honored and I feel so lucky to be here amongst all of you on this very powerful day of today's International Women's Day, and to have chosen a topic to discuss women in international politics, to be discussing power and diplomacy with women as a center today. There could not have been a greater match. So I congratulate everybody for organizing this very wonderful lecture. Thank you, Manviji. Thank you so much for giving such a wonderful introduction. And with this, I request Sanskarji to continue with his talk. Thank you. Thank you so much, ma'am. So, when we think about global politics and diplomacy, we often imagine presidents, diplomats, and world leaders sitting at negotiation tables and shaping the future of nations. For a long time, these spaces were mostly dominated by men, but today that picture is gradually changing. Women are increasingly becoming an important part of international relations, not just as participants, but as leaders, diplomats, activists, and scholars who are influencing global decisions. India also has a proud history of strong women influencing the national and global politics. Leaders such as Indira Gandhi demonstrated how determined leadership can shape IR, while diplomats like Nirupama Rao represented India on major global platforms. Women today contribute to peace negotiations, climate diplomacy, humanitarian work, and international organizations. In fact, studies by the United Nations show that peace agreements are more likely to last when women are involved in negotiations. Scholars such as Cynthia Inloy challenged and asked a very powerful question: where are women in international relations?
This question helped expand the field to include issues like gender equality, human security, and inclusive policy making. For this, I would like to invite Mr. Sanskar as part of our GSTS Reconnect series, in which we are inviting our previous speakers, and he has been a constant supporter of the series and given previous two talks related to the domain of international relations, and now will speak on women shaping international politics, power, and diplomacy. The stage is yours, Sanskar. Thank you so much, Manvi. Today, we are celebrating the strength, determination, and resilience of women everywhere. Good evening, everyone, respected professors, Manish sir, honorable guest of honor, and whole GSTS fraternity. On this auspicious occasion of International Women's Day, I have a privilege to talk about how women are shaping international politics. Today, we discuss the amalgamation of gender and foreign policy, where concepts like ethics of care represented, and debates by feminist IR scholars. Moreover, I'll discuss the role of women in conflict resolution and peace processes. Along with that, I'll analyze how international platforms and agendas are representing women. Further, I'll talk about few women leaders who shaped the discourse of history in their country and left an impact on the globe. I'll try to incorporate the role of contemporary Indian women in foreign policy and diplomacy. At last, I'll be discussing the challenges faced by women in the field of international politics and scrutiny they suffer. So let's dive into the arena of geopolitics defined by women. Firstly, let's discuss the troika of gender, power, and foreign policy. See, in international relations, the traditional realist and liberal thinkers often treat states and their leaders as a agendered rational concept. Cynthia Alois talks about personal is international, but the focus of realist and liberal thinkers is that international कभी भी international हमेशा impersonal ही रहना चाहिए, जहां पर high politics is dominated by statements, actions, जिसकी वजह से women's are more marginalized and gender subjectivity के issues उठते ही रहते हैं. वहां पे female IR scholars proactively intervenes करती हैं और कहती हैं कि जो gender IR का जो foundation है वही पूरा गलत है. जहां पे IR के फाउंडेशन के अंदर आप पावर पढ़ते हैं, डिप्लोमेसी पढ़ते हैं और मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो मैस्कुलाइन आइडिया पर बेस्ड है. फेमिनिस्ट स्कॉलर्स कहती हैं कि जो IR का जो डिसिप्लिन है वो बिल्कुल भी अलग नहीं है, जहां पे हम डोमेस्टिक अरीना की बात करते हैं और एक रेगुलर हाउस होल्ड की बात करते हैं. रेगुलर हाउस होल्ड में हम पैटर्नलिज्म की बात करते हैं, पेट्रियार्की की बात करते हैं, जेंडर हायरार्कीज की बात करते हैं. सिमिलर पैटर्न और एक्सटेंडेड वर्जन पे वो हमको IR में दिखाई देता है. Cynthia Aloy, in her book Bananas, Beaches and Bases, talks about that patriarchal world is very much dangerous. ऐसा क्यों? Because national political arena जहाँ पे हम देखते हैं कि it is dominated by men, but फिर भी वहाँ पर कुछ हद तक थोड़ा स्पेस दिया जाता है कि women can represent themselves and are accessible to certain offices. वहीं इंटरनेशनल अरीना की हम बात करें तो वो पूरे तरीके से एक ऐसा स्फीयर बन गया है जो पूरे तरीके से डोमिनेट करते हैं बाय मेल ओनली. और अगर कहीं विमेन आ भी जाती है तो वहां पे विमेन आर आल्सो ट्राइंग टू मेक श्योर कि वो अपना मैस्कुलाइन प्रिजम्पशंस को लेकर चलें और शोकेस करें कि दे आर नथिंग लेस देन मेल. एक मोशन जो चलता आता है कि रियल मैन विल बी द प्रोटेक्टर इन सच अ वर्ल्ड और विमेन इज जस्ट अ मदर जो अपने सिटीजन्स की रक्षा करेगी, ऑफ कोर्स नॉट इन अ मैनली वे बट एज अ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मदर. जे.एन. टिकनर अपनी बुक जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस में बात करते हैं कि मॉर्गेंतो का जो पॉलिटिकल मैन है वो भी एक इमोरल पावर सीकिंग इंडिविजुअल ही है. वहीं पे मैकेवली जो वर्च्यू की बात करते हैं जिसमें वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि वॉरियर सिटीजन्स को अपनी मैस्कुलिनिटी प्रूव करनी है थ्रू कॉम्बैट बैटल्स और ऑटोनॉमी प्रूव करनी है, तो वहां पे वो बहुत हद तक जो फेमिनाइज्ड कॉन्सेप्ट है उसको इग्नोर ही कर रहे हैं. विमेन का जो रोल है वो बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप्ड कर दिया गया है फॉरेन पॉलिसी के अंदर और they think as unfit individuals for high politics. Feminist scholars आर्ग्यू करती हैं कि जो जेंडर और वैल्यू जो एसोसिएटेड है विद फेमिनिटी वो भी शेप कर सकती हैं फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी को. एक इन्फ्लुएंशियल आइडिया जो निकल के आता है दैट इज बाय कैरोल किलिगन जो बात करती है एथिक्स ऑफ केयर की. अब आप एथिक्स ऑफ केयर को देखेंगे तो एथिक्स ऑफ केयर पूरे तरीके से IR को रीओरिएंट करना चाहता है ऑन मॉरल थ्योरी, जहां पे वो बात करता है कि ट्रेडिशनली IR स्टेट सेंट्रिक पॉलिसी है, पावर बेस्ड कॉन्सेप्ट है. वहीं पे एथिक्स ऑफ केयर कहता है कि आप इंटरनेशनल रिलेशन को एक रिस्पॉन्सिव और एम्पैथेटिक फेमिनिस्ट फिलॉसफी पे बनाइए.
जहाँ पे अटेंटिव रहिए आप वल्नरेबिलिटीज से, नीड्स ऑफ अदर्स से, और कॉन्टेक्स्ट समझिए और एम्पैथी समझिए रादर देन गोइंग फॉर द रिजिड रूल्स। केयर एथिक्स पर्सपेक्टिव जो हम बात करते हैं वो 3 इंटरलिंक्ड क्वालिटीज पे बेस्ड है। पहला रिलेशनैलिटी, के वंस आइडेंटिटी इमर्ज्ड ओनली इन रिलेशन टू अदर। सेकंड कॉन्टेक्चुअलिटी, के वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच हम नहीं ले सकते, हर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही चाहिए। थर्ड वन इज रिवाइजेबिलिटी, कि आप हमेशा एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ नहीं चल सकते कि कि मेरे को यही करना है तो यही मैं करूंगा या करूंगी। देयर शुड बी सर्टेन फ्रेमवर्क कि अगर आपको फीडबैक मिल रहे हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, तो आप अपने आइडियाज को भी रिवाइज करिए। ये 3 क्वालिटीज एक्चुअली बहुत यूजफुल है अगर आपको किसी की भी फॉरेन पॉलिसी एनालाइज करनी है, और इवन विमेन लीडर्स को भी आपको एनालाइज करना है कि उन्होंने कैसा वर्क करा है, कैसा परफॉर्म करा है उसके लिए। केयर एथिसिस्ट वर्जीना हेल्ड आगे इस आइडिया को एक्सटेंड करती हैं और कहती हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो हायरार्किकल सिस्टम है और डोमिनेशन बेस्ड स्टेट का जो बिहेवियर है उसको हमें रिप्लेस करना है। अब रिप्लेस किससे करना है? हमें उसको रिप्लेस करना है कोऑपरेटिव वैल्यूज से, कि इंटरनेशनल रिलेशन में भी हमें कोऑपरेटिव वैल्यूज लानी है, उधर भी एम्पैथी होनी चाहिए, उधर भी वल्नरेबिलिटी देखनी चाहिए दूसरे लोगों की, उधर भी हमें डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कैरल गिलिगन खुद इंसिस्ट करते हैं केयर पर्सपेक्टिव पे, बट वो ये भी कहती हैं साथ साथ कि केयर पर्सपेक्टिव कोई मॉरल रीजनिंग नहीं है। मतलब कि आप क्या कहते हैं, आप ये नहीं समझ सकते कि अगर विमेन कोई एथिक्स ऑफ केयर लेके चल रही है तो शी इज नॉट अलाउड टू एक्ट रूथलेसली और वो फियर्सली वर्क नहीं कर सकती। नो, इट इज मोर अबाउट कि विमेन लीडरशिप को ये रिमाइंड कराते रहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है, डिप्लोमेसी है, सिक्योरिटी है, वो बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। वो सिर्फ आर्मीज में, वॉरफेयर में या हाई पॉलिटिक्स के अंदर ही सीमित नहीं है। उसका ह्यूमैनिटेरियन एड से भी उतना ही लेना देना है, उसका क्लाइमेट जस्टिस से भी लेना देना है, उसका सोशल वेलफेयर से भी लेना देना है। तो अब एक सेंट्रल क्वेश्चन ये आता है कि जो आईआर में हम जेंडर की बात करते हैं, विमेन लीडर्स की बात करते हैं, तो क्या विमेन लीडर्स फॉरेन पॉलिसी को डिफरेंटली हैंडल करती है, या विमेन लीडर्स पीसफुल कोऑपरेशंस के लिए ज्यादा अच्छे से सुटेबल हैं? इसी के लिए हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, जहां पे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से डिप्लोमेसी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में विमेन का रोल रहता है। विमेन लीडर्स को जनरली एक स्टीरियोटाइप कर दिया गया है कि दे आर पीस बायस, कि विमेन लीडर्स आएंगी, अपनी डॉविश पॉलिसीज दिखाएंगी और दे विल बी सॉफ्ट ओनली, कि जिनको आप कॉर्नरेट भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन बन रही है तो। बट स्कॉलर्स ने यहाँ पे बोला है कि ये जो स्टीरियोटाइप है अबाउट पीस बायस अबाउट विमेन, ये इसका कोई भी एम्पेरिकल बेस है ही नहीं। जोशुआ और क्रिस्टोफर बेलर ये अपनी रिसेंट स्टडी में बताते हैं कि पब्लिक एक्सपेक्ट करती है विमेन लीडर्स को टू बी डॉविश, टू बी सॉफ्ट, के बट वहीं पे अगर वो विमेन लीडर्स डॉविश होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, तो वही सारे वोटर्स उनको कंपेयर करते हैं उनके मेल काउंटरपार्ट के साथ कि अरे वो मेल लीडर तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। और वही सेम स्टांस अगर सॉफ्ट स्टांस फीमेल लीडर्स लेती है तो उनको बोला जाता है कि ये तो बहुत अथॉरिटेरियन है। इन अदर वर्ड्स कि फीमेल लीडर्स को प्रिंसिपल ऑफ पीस पर तो वर्क करना ही करना है, साथ साथ उनको डिप्लोमेसी और डिफेंस को भी साध कर ही चलना है। ऑल्दो हम ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी विमेन लीडर्स जो आती हैं वो बहुत पैसिफिस्ट होती हैं और बहुत सॉफ्ट कॉर्नर पॉलिसी अपनाती हैं। नो, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ आयरन लेडीज। अगर आप मार्गरेट थ्रेचर की बात करें, गोल्डा मायर की बात करें, तो उन्होंने बहुत ही फर्म स्टांस लिए हैं, उन्होंने बहुत ही फर्म डिसीजंस लिए हैं, उन्होंने अपनी कंट्रीज को वॉर में भी लीड करा है। इसी पर जेएन टिकनर आर्ग्यू करती है कि डिसिप्लिन को, इस आईआर डिसिप्लिन को समझना पड़ेगा कि सिक्योरिटी का मतलब बस आर्मीज, वॉरफेयर और मॉडर्न वेपन्स नहीं है। इसके अंदर सेफ्टी भी आती है, सेफ्टी ऑफ एवरीवन, सेफ्टी ऑफ विमेन, सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन एंड ओवरऑल ह्यूमन सिक्योरिटी की वो बात करती हैं। और साथ साथ बात करती हैं कि जो आईआर रिलेशन बनेगा दैट शुड बी बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ कोऑपरेशन। इसके जब भी हम क्या कहते हैं विमेन इनकॉर्पोरेट करती हैं प्रैग्मेटिज्म और प्रिंसिपल ऑफ केयर को, वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ इंदिरा गांधी। इन 1971 शी डिफाइड यूएसए ऑन द वॉर इशू, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो मेरी कंट्री की सिक्योरिटी है इट रेजोनेट्स विद द सिक्योरिटी ऑफ द होल रीजन। तो अगर किसी भी रीजन की, अगर बांग्लादेश की, अगर ईस्टर्न पाकिस्तान की अगर सिक्योरिटी हार्म हो रही है तो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा। दैट्स व्हाई इन 1971 वॉर शी एक्ट रूथलेसली। बट इसका मतलब ये नहीं है कि शी इज नॉट टेकिंग प्रैग्मेटिक अप्रोच इन हर पॉलिसीज। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे पीपल सेंट्रिक इनिशिएटिव्स भी लिए, जैसे गरीबी हटाओ कैंपेन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करना, इक्वल लिबरेशन एक्ट 1976 वगैरह वगैरह। सो विमेन लीडर्स के साथ एक पर्टिकुलर चीज जो जोड़ी जाती है वो ये है कि नेगोशिएशंस और मल्टीलेटरलिज्म
के पैटर्न पे वो चलती हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 2000 के अंदर एक अपना रेजोल्यूशन लेके आती है जिसके अंदर वो बात करते हैं कि हमें कैसे पीस प्रोसेसेस में विमेन के रोल को और अप्रिशिएट करना है और उसको और बढ़ावा देना है। स्टडीज भी यही बताती है कि अगर विमेन का इन्वॉल्वमेंट किसी भी पीस टॉपिक के नेगोशिएशन के अंदर आता है तो उससे पीस का लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट 20% तक बढ़ जाता है। बट दूसरी तरफ जेके फ्लेचर ये बात करते हैं अपनी बुक पैराडॉक्स ऑफ पोस्ट थ्योरिक लीडरशिप के अंदर, वो कहती है कि विमेन आर एक्सपेक्टेड टू इनेक्ट मैस्कुलाइन रैशनल ऑर्डर ऑफ लीडरशिप, पर साथ साथ उनसे ये भी एक्सपेक्ट करा जाता है कि अपना फेमिनिन आइडियल्स मत छोड़ो। और वहीं पे अगर वो दोनों के अंदर डेविएट करती हैं तो उनको फिर ये बोला जाता है कि नहीं, आप रूथलेस हो, आप एग्रेसिव हो, आप आयरन लेडी हो। इन शॉर्ट, विमेन के पास हमेशा से वो क्रेडिबिलिटी डिलेमास, वो पैराडॉक्स हमेशा से चलता ही आया है। If she is too soft, opponents exploit it. If she is too harsh, she is labeled as unfeminine. CMU की स्टडी ये बताती है कि एडवर्सरीज भी ये मानते हैं कि पीस प्रपोजल्स के अंदर अगर विमेन लीडर्स आती हैं तो प्रपोजल्स की क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है। फॉर्मर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी निरुपमा राव कहती हैं कि फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी कोई पैसिफिस्ट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। इट इज अबाउट हैविंग टफ कन्वर्सेशन इन अ वेरी ग्रेसफुल मैनर। फॉर्मर एम्बेसडर राव ये भी कहती हैं कि साथ साथ अगर आप विमेन को पीस प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आप आधी 50% ऑफ द पॉपुलेशन को आप एक्सक्लूड नहीं कर रहे हो। अगर किसी भी पीस प्रोसेस में से 50% ऑफ द पॉपुलेशन एक्सक्लूड हो रही है तो वो उस पर्टिकुलर नेगोशिएशन के साथ जस्टिस ही नहीं है। फर्दर अगर हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और एजेंडाज में क्या रोल चल रहा है विमेन का। जैसे कि हम देख रहे हैं कि विमेन लीडर्स ने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करा है इन शेपिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। अगर हम ग्लोबल गवर्नेंस पे बात करें तो लास्ट 3 डिकेड्स के अंदर बहुत राइज देखने को मिला है इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, स्पेशली इन सीनियर डिप्लोमेटिक रोल्स। यूएन लीडरशिप पोजीशंस में या जुडिशियल बॉडीज के अंदर भी बहुत विमेन का रोल बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि मैंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 2000 की बात करी, जिसमें विमेन का लीडरशिप पार्टिसिपेशन को सेंट्रल बताया गया फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। साथ साथ 1995 का बीजिंग डिक्लेरेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक ऐसे पॉलिसी एक्शन की बात करी गई जहां पे आप विमेन को ग्लोबली एम्पावर करेंगे। और उसी का नतीजा था कि यूएन विमेन एस्टेब्लिश करा जाता है 2010 के अंदर, जहां पे यूएन पॉलिसी एरिना के अंदर जेंडर पर्सपेक्टिव को एक नई दिशा मिलती है। अगर आज हम बात करें, फिर भी इतने सालों के बाद यूएन विमेन बन गया, इतनी सारे डिक्लेरेशन पॉलिसीज आ गई, फिर भी कुछ ही यूएन बॉडीज के अंदर फीमेल हेड्स हमको देखने को मिलते हैं। बड़ी बड़ी यूएन बॉडीज की बात करें जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, वहां पे तो विमेन प्रेसिडेंट आज तक बनी ही नहीं है। और इवन यूएन बॉडीज छोड़िए, जो लिबरलिज्म के फ्लैग बेरर्स हैं यूएसए, उनका आज तक एक भी फीमेल प्रेसिडेंट भी नहीं बनी है। तो विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अभी भी बहुत हद तक मिनिमाइज्ड ही है। वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के रफली 2025 के अंदर रफली 1/3 ऑफ द एम्बेसडर्स वर विमेन, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है अगर हम 2009 से कंपेयर करते हैं, जहां पे बस वो 8% था। पर ग्लोबली ये डेटा इतना अच्छा भी नहीं है। विमेन इन डिप्लोमेसी इंडेक्स 2024 के अंदर ये पता चलता है कि G20 में सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं, कनाडा और फ्रांस, जिनके पास फीमेल फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। बाकी कंट्रीज के पास फॉरेन मिनिस्टर्स G20 के अंदर फीमेल है ही नहीं। ये बताता है कि विमेन अभी भी माइनॉरिटीज में है उन रूम्स के अंदर जहां पे बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। पर जब भी हम बात करते हैं कि विमेन की मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पर, लीडरशिप रोल्स पर, आई थिंक 2 नाम मेरे दिमाग में आते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा सर्व करा है और सर्व कर रही हैं। फर्स्ट नेम इज द यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट अर्सेला वॉन डर लेनिन, जो कि हमारी मुख्य अतिथि भी थी इस साल के गणतंत्र दिवस पर। उनके पॉलिटिकल करियर को अगर हम देखेंगे तो शी हैज वर्कड इन वेरियस रोल्स। उनका रोल एज अ लेबर एंड सोशल अफेयर्स मिनिस्टर फॉर जर्मनी, वहां पे हम देखते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे रिफॉर्म्स लेके आए, इतना वोकल थी रिफॉर्म्स को लेके कि ट्रेडिशनल पार्टीज के उन्होंने बहुत सारे एनिमीज ही बना लिए। पर वहीं पे लेफ्ट पार्टीज ने उनको बहुत एडमायर भी करा। जिस तरीके से उन्होंने चाइल्ड केयर नर्सरीज को बढ़ाने की बात करी, विमेन का कोटा बढ़ाने की बात करी लिस्टेड कंपनीज के अंदर, और गे मैरिजेस को एडवोकेट करा। पर वहां पर साथ साथ उनको लेकर एक क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि उनकी लीडरशिप की जो स्टाइल है वो बहुत ज्यादा रिलायंट करती है वो आउटसाइड कंसल्टेंसी के ऊपर। जहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 2015 की हम बात करें, जब वो 2013 में पहली बार डिफेंस मिनिस्टर बनती है जर्मनी की, फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर, पर वो वहां पे मना कर देती हैं यूक्रेन को वेपन सप्लाई करने को, जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा जाता है। बट उनका पॉइंट ये था कि
हम यूक्रेन को वेपन्स इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमें फ्यूचर में रशिया के साथ नेगोशिएशंस करने हैं। डोमेस्टिक ऑडियंस को उनका ये डिसीजन बहुत ज्यादा ये लगा कि वो बहुत डिसीजन आउटसाइड कंसल्टेंसी पे बेस्ड है और वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। सेकंड लीडर जो दिमाग में आती है वो है गीता गोपीनाथ। ऑल्दो शी इज नॉट अ लीडर बट उन्होंने फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे सर्व करा है, जो कि नंबर 2 पोजीशन मानी जाती है फंड के अंदर। उससे पहले वो पहली फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट भी थी आईएमएफ की। उन्होंने एक पेपर लिखा था जिसका नाम था पैंडेमिक पेपर्स, जिसमें वो बात करती हैं किस तरीके से पैंडेमिक को खत्म करना है कोविड-19 को, और किस तरीके से हमें टारगेट्स बनाने हैं फॉर द वैक्सीनेटिंग द होल वर्ल्ड। उसके बाद एक टास्क फोर्स बनाया जाता है उस पेपर के बेसिस पे, जिसमें आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक की लीडरशिप्स बैठती हैं और बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस करते हैं, ट्रेड बैरियर्स को, सप्लाई चेन को, पेटेंट कंसर्न्स को रिलेटेड टू वैक्सीन। और उसकी वजह से एक एक्सीलरेटेड डिलीवरी होती है टुवर्ड्स द लो इनकम एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। ओवरऑल अगर हम फीमेल लीडरशिप की बात करते हैं ग्लोबल गवर्नेंस में, तो हमें एक सब्सटेंटिव चेंज तो देखने को मिलता है। कैसे वो बात करती हैं कि उन पॉलिसीज की, जैसे कि एजुकेशनल गोल्स की, माइक्रो फाइनेंस फॉर वुमेन, एंटी ट्रैफिकिंग मेजर्स, जो कि बहुत हद तक मिसिंग रहता है मेल एजेंडा से। जैसे कि हम बोलते हैं कि यू बेनिफिट विमेन, यू बेनिफिट सोसाइटी, सो विमेन लीडर्स, ये देखा जाता है कि वो ना सिर्फ विमेन राइट्स की बात कर रही हैं, बट साथ साथ एक ब्रॉडर ह्यूमन राइट कंसर्न को भी साथ लेकर चल रही हैं, जो कि ट्रेडिशनल हाई पॉलिटिक्स से मिसिंग था। जेएन टिकनर ये ऑब्जर्व करती हैं कि जब भी विमेन बहुत ज्यादा विमेन राइट्स की बात करती हैं, तो वो बैकलैश भी झेलती हैं उसका, कि द वेरी एक्ट ऑफ स्पीकिंग फॉर द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज इवन थ्रेटनिंग बाय द मेल कलीग्स। ऐसा क्यों? वहां पे वो कोट करते हैं कल्चरल पैटर्नलिज्म को, कि मेल लीडर्स ये समझते हैं कि वो विमेन के लिए बोल सकते हैं, फॉर द 50% ऑफ द पॉपुलेशन बोल सकते हैं, बाय सब्जुगेटिंग द रेस्ट ऑफ द विमेन। तो एक जो पर्टिकुलर चीज है जो यहाँ पे इंश्योर हमें करनी है कि जो फेमिनिन जो क्वालिटीज आ रही हैं, जो फेमिनिन एंगल हम लेकर आ रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर, वो मैस्कुलिनिज्म का एक ऑपोजिट पॉइंट नहीं बनना चाहिए। इट शुड फोकस मोर ऑन को-इक्वल फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स। फर्दर अगर हम आगे बढ़े तो हम कुछ ऐसे लीडर्स की बात कर सकते हैं जिन्होंने एक्चुअली ग्लोब पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट छोड़ा है। 3 लीडर्स ऐसे मेरे दिमाग में आती हैं जिनकी पॉलिसीज एक दूसरे से अलग थी, जिनका तरीका एक दूसरे से अलग था, बट उनका इम्पैक्ट उनकी कंट्री पर, उनके रीजन पर बहुत बड़ा था। फर्स्ट लीडर इज मार्गरेट थ्रेचर फ्रॉम यूके। मार्गरेट थ्रेचर 1979 से 1990 तक यूके की प्राइम मिनिस्टर थी। शी वाज अ वेरी मच आइकॉनिक लेडी। क्यों? क्योंकि उन्होंने न्यू लिबरलिज्म की पॉलिसी के लिए तो वो जानी जाती हैं, पर साथ साथ अगर आप उनकी ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि शी led a strong ideological confrontation with Soviet bloc. She was very much happy with her partnership with the America, और साथ साथ वो मिलिट्री यूज करने से भी नहीं डरती। इसका एग्जांपल हमें देखने को मिलता है 1982 फ्रैंकलैंड वॉर के अंदर, जहां पे अर्जेंटीना इन्वेड करता है ब्रिटिश हेल्ड फ्रैंकलैंड आइलैंड को, एंड तुरंत मार्गरेट थ्रेचर अपनी नेवल फोर्सेस को भेजती हैं टू टेक ओवर द आइलैंड। वो डिसीजन इतना आइकॉनिक था कि उस टाइम पे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मार्गरेट थ्रेचर इतनी जल्दी अपनी नेवल फोर्सेस को यूज करने को तैयार हो जाएंगी। मार्गरेट थ्रेचर के पॉलिसी रिकॉर्ड को, फॉरेन पॉलिसी रिकॉर्ड को चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो एक बहुत ही टफ बार्गेनर है। उनके यूरोपियन कम्युनिटी के बाकी कलीग्स भी यही बात बताते हैं। उनको बोला जाता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा कन्वेंशनल मस्कुलाइन स्टाइल ऑफ लीडरशिप को अपनाया था। फेमिनिस्ट आईआर स्कॉलर्स उनसे थोड़ा डिवाइड ही होती हैं ओपिनियंस के अंदर। वो कहती हैं कि मार्गरेट थ्रेचर की लेगेसी को आप फेमिनिस्ट लेगेसी के तौर पे नहीं नाप सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि मार्गरेट थ्रेचर ने 11 साल के टेन्योर में सिर्फ एक विमेन कैंडिडेट को अपनी कैबिनेट में रखा, और ऐसा कोई भी उनका पॉलिसी डिसीजंस नहीं देखने को मिला जिससे आप ये बात कर सको कि उन्होंने जेंडर गैप को या जेंडर इक्वालिटी के लिए कुछ किया है। बट मार्गरेट थ्रेचर की लेगेसी शायद उसमें थी ही नहीं। थ्रेचर ने खुद रिजेक्ट करा था कि उनकी लीडरशिप को आप एक जेंडर्ड रोल के अंदर नहीं डिफाइन कर सकते। उनको एक विमेन प्राइम मिनिस्टर नहीं, उनको बस एक प्राइम मिनिस्टर के रोल में रहना था। जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ती है तो शासन मार्गरेट थ्रेचर के क्रिटिक के साथ साथ उनके एडमायरर्स भी बहुत बढ़ते हैं। मार्गरेट थ्रेचर को एक ऐसे रोल में दिखाया जाता है जिस तरीके से कि आप एसेंशियलिस्ट क्लेम जो देते हैं कि विमेन लीडर्स आर नेचुरली मोर पीसफुल, वहीं पे मार्गरेट थ्रेचर उसके जस्ट ऑपोजिट रोल में दिखती है। सेकंड एग्जांपल इज ऑफ गोल्डा मेयर। इजराइल की गोल्डा मेयर प्राइम मिनिस्टर रहती हैं इजराइल में फ्रॉम 1969 टू 1974। गोल्डा मेयर के लिए बात करें तो उनके पास जेंडर लेबल्स के लिए टाइम नहीं था। उनको ये बोला जाता था कि ये शी रिजेक्टेड फेमिनिस्ट कॉज, एंड आल्सो वो सिंपैथेटिक भी नहीं थी टुवर्ड्स द अरब वर्ल्ड, एंड शी कॉल्ड आउट दैट देयर इज नो सच थिंग्स एज पैलेस्टीन।
ऑफ कोर्स एज अ लीडर जो कि बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उन्होंने फेस करे इन एंटी सेमेटिक वायलेंस ईस्टर्न यूरोप में, तो उनका वो जो भी रिकॉर्ड था, उनका जितनी पॉलिसी थिंक टैंक थे, पॉलिसीज थी, वो बहुत हद तक उसका इम्प्रिंट उनपे दिखता था उनके ऑफिस में। बट दो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो लेती हैं। पहला, 1972 में जब मोनिश मैसेकर होता है, वहां पे उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी एक सीक्रेट काउंटर टेररिज्म कैंपेन करती है, जिसके लिए इजराइल को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन भी मिलती है वर्ल्ड के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट 1973 का वॉर, जहां पे कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वो वॉर ऑफ चॉइस था, कि इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सदात उनको ऑप्शन देते हैं पहले वॉर से पहले कि आप 1967 की जो बाउंड्रीज है हमारी कंट्री की, उस पर आप वापस आ जाइए। पर गोल्डा मेयर को मंजूर नहीं था और उन्होंने बोला कि नहीं, हम अगर अब डीएस्केलेट करेंगे तो आगे जाके हम डिसएडवांटेजेस पोजीशन में ही रहेंगे। दैट वाज द कैरेक्टर ऑफ द लेडी। तो उन्होंने वॉर लड़ा, शी फॉट द वॉर, एंड इवन आफ्टर इजरायली इंटेलिजेंस सेड कि वॉर शायद एक बेटर ऑप्शन नहीं है, बट स्टिल शी वाज वेरी क्लियर कि नहीं, वो पीछे नहीं हटेंगे और उन्हें आगे ही कॉन्कर करना है। पनीना लाहब एक इजरायली लीगल स्कॉलर हैं जो कहती हैं कि गोल्डा मेयर इज एंटी फेमिनिस्ट, मतलब शी नेवर एम्ब्रेस्ड वुमेन्स लिबरेशन रिटोरिक्स, और उनपे जो पूरी पार्टी है वो भी पूरा पैट्रियार्कल पार्टी कल्चर पे ही बेस्ड है। बट स्टिल डेविड बेन गुरियन, इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर, बोलते हैं कि गोल्डा मेयर वाज द ओनली मैन इन हिज कैबिनेट। अब ये एक क्रेडिट देने की बात है क्या पता नहीं, बट स्टिल अमेरिकन राइटर्स भी ये लिखते हैं कि गोल्डा मेयर इग्नोर्ड जेंडर ऑल टुगेदर एंड एक्टेड लाइक अ बुलडोजर, अ वेरी हार्श वर्ड फॉर अ लेडी, बट स्टिल गोल्डा मेयर की लेगेसी को आप एक नॉर्मल फीमेल लीडरशिप की तरह नहीं देख सकते। उनको आपको देखना है एक इस तरीके से कि शी डिड एवरीथिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ अ नेशन, जहां पे उनको दिखा कि मेरे नेशन की जहां सेफ्टी है, मेरे नेशन को सेल्फ इंटरेस्ट है, मेरे को उसको ही आगे रखना है। नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स इंदिरा गांधी। पॉलिटिकल साइंटिस्ट का ये मानना है कि इंदिरा गांधी का टेन्योर नेहरूवियन आइडियलिस्ट आइडियोलॉजी से अलग जाता है। कैसे? अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुमित गांगुली ये बोलते हैं कि इंदिरा गांधी का टेन्योर एक रियल पॉलिटिक नॉन अलाइनमेंट का है, जहां पे वो थर्ड वर्ल्ड को एक साथ जोड़ती हैं, सॉलिडेरिटी शो करती हैं और नाम प्लेटफॉर्म्स, और साथ साथ एक ऐसी हार्ड पावर कैपेबिलिटी भी बनाती हैं जिससे उनका रीजनल डोमिनेंस साउथ एशिया में भी बढ़े। 1971 के वॉर की बात करें तो वहां पर भी स्कॉलर्स डिवाइडेड थे कि उन्होंने इंटरवेंशन क्यों करा। गैरी बास ये कहते हैं कि इंडिया ने इंटरवेंशन 3 मेजर रीजंस की वजह से करा। पहला, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे थे, जेनोसाइड्स हो रहे थे। दूसरा, बंगाल के अंदर रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ रहा था, और तीसरा कि इंडिया की सोवरेनिटी भी थ्रेटन हो रही थी। बट एट द सेम टाइम डैनियल पार्क इन सब आर्ग्यूमेंट से ज्यादा खुश नहीं है। डैनियल पार्क का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो इंदिरा गांधी का जो पूरा क्लासिक केस ऑफ इंटरवेंशन था, दैट वाज जस्ट नथिंग बट अ नेशनल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। वो पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटना चाहती थी, पाकिस्तान को डिसमेंबर करना चाहती थी, और साथ साथ इंडिया को एज अ रीजनल हेजेमन के तौर पे एस्टैब्लिश करना चाहती थी। सिमिलर केस वाज विद द 1974 पोखरण टेस्ट, जहां पे राज रमन्ना, जो कि उस टाइम के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर थे, वो ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम पे अपने 2 सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइजर पीएन हक्सर और डीपी धर को ओवररूल करा था। उनके एडवाइजर्स का ये कहना था कि अगर आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं तो उसकी वजह से जो इकोनॉमिक कॉस्ट है और डिप्लोमेटिक फॉलआउट है वो बहुत बड़ा होगा। बट आई थिंक इंदिरा गांधी वाज रेडी फॉर द फॉलआउट, क्योंकि उन्होंने वो डेमोन्स्ट्रेशन करवाया, एंड उसके 3 मेजर रीजंस हमको देखने को मिलते हैं। पहला, उनको न्यूक्लियर पावर चाइना को डेटर करना था। दूसरा, सुपर पावर्स के सामने अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ानी थी। और तीसरा, उनको टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट और ग्रेट पावर एस्पिरेशन भी शो करना था। मेन स्ट्रीम फेमिनिस्ट मूवमेंट हालांकि इतना खुश नहीं रहते इंदिरा गांधी से, क्योंकि उनका ये मानना है कि इमरजेंसी के रूल के टाइम पे शी वाज क्वाइट अ अथॉरिटेरियन रूलर, जिन्होंने बहुत हद तक अपने रूल के अंदर बहुत सारे सिविल राइट्स वायलेशंस करे। बट एट द सेम टाइम काफी उनको एक्नॉलेज भी करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल ग्लास सीलिंग को ब्रेक करा और शोकेस करा कि विमेन लीडर्स कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू सेव देयर कंट्री एंड टू डिफेंड इट। उन्होंने साथ साथ स्ट्रॉन्ग ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस भी लिए, जो कि देखे जाते हैं रिगार्डिंग द ईस्ट पाकिस्तान। जो भी कुछ उन्होंने करा, वी कैन से दैट ड्यूरिंग द इंदिरा गांधीज लीडरशिप शी एक्चुअली चैलेंज्ड एज वेल एज रिप्रोड्यूस द पैट्रियार्कल नॉर्म। जहां पे उनको एक तरफ गूंगी गुड़िया बोला जाता था, वहीं पे दूसरी तरफ शी एक्चुअली बिकेम द की आर्किटेक्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड सेंट्रलाइज्ड पावर शेयरिंग। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो कुछ उन इंडियन वुमेन्स की बात करें जिन्होंने कंटेम्प्रेरी टाइम्स पे इंडियन डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। पहला नाम जो आता है वो है सुषमा स्वराज का। The late Sushma Swaraj was India's External Affairs Minister 2014 से 2019 तक। उनको सबसे इंपॉर्टेंटली हम जानते हैं उनकी डिजिटल डिप्लोमेसी की वजह से।
सुषमा स्वराज वॉज वेरी मच क्लियर कि अगर कोई भी इंडियन बाहर फंसा हुआ है, कोई भी इंडियन हेल्प मांग रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विल बी रेडी टू हेल्प हिम और हेल्प हर, आप कहीं पर भी हो। इसका बेस्ट एग्जांपल 2017 में देखने को मिलता है, जहां पे ट्विटर पे एक ह्यूमरसली एक यूजर ये बोल देता है कि इंडियन एम्बेसी मेरी हेल्प करो, मैं मार्स पे फंस गया हूँ। सुषमा स्वराज बिटिंगली ट्वीट करते हैं कि इवन इफ यू आर स्टक ऑन मार्स, इंडियन एम्बेसी विल बी देयर टू हेल्प यू। सच वाज द नेचर एंड सच वाज द कंपैशन ऑफ हर रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सुषमा स्वराज वाज अनकॉम्प्रोमाइजिंग ऑन पोजीशन ऑन द सिक्योरिटी कंसर्न्स। नो, शी वाज प्रीटी मच श्योर कि मेरे को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर भी उतना ही हार्ड स्टैंड लेना है, मुझे क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स पर उतना ही हार्ड स्टैंड लेना है जिस तरीके से मैं बाकी मैटर्स पे ले रही हूँ। उसका एग्जांपल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2018 की स्पीच में देखने को मिलता है, जहां पे वो डायरेक्टली पाकिस्तान को कॉल आउट करती हैं और क्रिटिसाइज करती हैं फॉर द क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज। एक सेलिब्रेटेड विक्ट्री जो मानी जाती है सुषमा स्वराज की, जिसको हम डिप्लोमेसी विक्ट्री भी मानते हैं, वाज द स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंडियन नेवल ऑफिसर कुलभूषण जाधव, जहां पे सुषमा स्वराज की डिप्लोमेसी काम आती है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वो स्टे लेके आती हैं। हम फॉरेन मिनिस्टर्स की बात करते हैं, लीडर्स की बात करते हैं, बट आई थिंक कहीं ना कहीं हम डिप्लोमेट्स को उसमें भूल जाते हैं। डिप्लोमेट्स का रोल बहुत बड़ा है जब हम बात करते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने की ऑन ग्लोबल स्टेज, क्योंकि डिप्लोमेट्स ही हैं जो डे टू डे फंक्शनिंग के अंदर और डे टू डे नैरेटिव्स को काउंटर करते हैं फॉर इंडिया एंड इनहेंस करते हैं उसकी सॉफ्ट पावर। दो डिप्लोमेट्स यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। फर्स्ट इज अरुंधति घोष। अरुंधति घोष वाज अ इंडियन डिप्लोमेट जिन्होंने इजिप्ट के अंदर एज एन एम्बेसडर भी सर्व करा है। वो इसलिए जानी जाती है कि 1996 के अंदर CTBT कॉन्फ्रेंस के टाइम पे जेनेवा के अंदर वो वेस्टर्न प्रेशर के अंदर झुकी नहीं। शी वाज प्रीटी मच क्लियर कि न्यूक्लियर पॉलिसी या न्यूक्लियर आर्मामेंट किसी भी कंट्री की जागीर नहीं है। इफ वी वांटेड वी विल गेट इट। तो वहां पे आप कहीं किसी भी कंट्री पे आप टेस्ट पैन को लेके, आप ट्रीटी को लेके आप बैन नहीं कर सकते टेस्टिंग को, और अगर इंडिया को करना है तो इंडिया टेस्ट करेगा, कंडक्ट कराएगा फॉर इट्स ओन रीजनल सिक्योरिटी। जिसकी वजह से जहां पे उन्होंने साइन करने से मना करा CTBT कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडिया की तरफ से, जिसकी वजह से उनको सेलिब्रिटी स्टेटस भी मिला इंडिया के अंदर आगे चलकर। दूसरी डिप्लोमेट है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज को आप सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए बहुत ज्यादा जानेंगे। क्यों? क्योंकि एज अ इंडियाज एम्बेसडर टू यूनेस्को इन 2014 से लेकर रुचिरा कंबोज ने बहुत सारे ऐसे काम करे जिससे इंडिया की सॉफ्ट डिप्लोमेसी बहुत हद तक बढ़ी। फर्स्ट वन इज वाराणसी और जयपुर को इंडिया की फर्स्ट क्रिएटिव सिटी की लिस्ट में डाला गया 2014 में। 2017 में अहमदाबाद को इंडिया की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर इनकॉर्पोरेट करा गया। और 2016 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, योगा को वाज डिक्लेयर्ड एज अ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो डिप्लोमेट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉरेन पॉलिसी एंड पावर इन पॉलिटिक्स। मूविंग फर्दर, हमने इतनी सारी विमेन लीडर्स की बात करी, डिप्लोमेट्स की बात करी। नाउ वी नीड टू काउंटर कि इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं, विमेन लीडर्स हैं, वो चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं इन द अरीना ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट सिंथिया एलॉय बोलती हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो बहुत हद तक ये बताते हैं कि पूरा बेस्ड एक आइडिया पर है, दैट इज मैस्कुलिनिटी। अकॉर्डिंग टू एलॉय, डिप्लोमेसी, मिलिट्री स्ट्रेंथ, स्टेट क्राफ्ट वो ट्रेडिशनली बनाई ही इसलिए गई है कि दीज आर जस्ट मैस्कुलाइन डोमेन, जहां पे विमेन का काम ही नहीं है। विमेन लीडर्स अगर आती है वहां पर तो ऐसा लगता है कि द पर्टिकुलर फील्ड इज नॉट डिजाइन्ड फॉर देमसेल्व्स। इसलिए वन पर्टिकुलर चैलेंज जो मैंने पहले भी डिस्कस करा है इज ऑफ डबल बाइंड, कि अगर विमेन लीडर्स ज्यादा असर्टिवनेस शो करती हैं तो वो उनको एग्रेसिव और अथॉरिटेरियन के लेबल्स मिल जाते हैं। वहीं पे अगर विमेन लीडर्स बहुत एम्पैथी के साथ और कॉशियसली बिहेव करते हैं तो उनको वीक बोल दिया जाता है। इधर एक एग्जांपल हम फिक्शन सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स से ले सकते हैं, जहां पे डेनिस टारगेरियन का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है कि इनिशियली डेनिस टारगेरियन को एक बहुत ही सॉफ्ट गर्ल, जहाँ पे वो आगे नहीं बढ़ेंगी, किसी को मारेंगी नहीं, अपने सोल्जर्स को भी नहीं मारना चाहती, स्लेवरी को एबॉलिश करना चाहती हैं और सबके लिए बहुत ज्यादा एम्पैथी है उनके मन के अंदर। वही तो वहां पे उनको ये दिखाया जाता है कि उनके जो एडवाइजर्स हैं, बाकी लोग हैं, तो उनको बहुत हल्के में लेते हैं कि नहीं शी विल नॉट गोइंग टू कैपिटल्स लैंडिंग और उसको कोई थ्रोन ब्रोन नहीं मिलने वाली। पर वहीं पे अगर जब उनका वो मदर ऑफ ड्रैगन वाला एटीट्यूड आता है कि वो रिवेंज लेने के लिए पूरे कैपिटल्स लैंडिंग को तबाह कर देती हैं, गिरा देती हैं, तोड़ देती हैं, और कोई भी उनके सामने आता है उनका ओपोनेंट, उसको मार देती हैं, तो वहां पे लोग ये बोलते हैं कि नहीं अब तो शी हैज गॉन रोग, शी हैज गॉन मैड, अब तो इसको मारना पड़ेगा। तो these particular paradoxes are actually very much related when we compare women in the leadership position. Second challenge is that is of glass cliff. ग्लास क्लिफ का कॉन्सेप्ट मिशेल रायन और एलेक्स हसलम देते हैं, जो ये कहते हैं कि आप मोस्ट लाइकली ये देखने को मिलता है कि विमेन लीडर्स को उन पोजीशंस पे तब अपॉइंट करा जाता है जबकि कोई पीरियड ऑफ क्राइसिस चल रहा हो या इंस्टेबिलिटी चल रही हो।
जहाँ पे प्रोबेबिलिटी फेलियर की बहुत ज्यादा है और वुमेन लीडर्स के करियर भी बहुत हद तक खत्म हो जाते हैं। इसका एग्जांपल हम इंदिरा गांधी के केस से ले सकते हैं, जहाँ पे उनको लाल बहादुर शास्त्री की सडन डेथ के बाद लीडरशिप दी जाती है, जहाँ पे पार्टी और नेशन दोनों के दोनों टर्मोइल में थे। थर्ड चैलेंज इज ऑफ लेजिटिमेसी एंड सिक्योरिटी क्रेडिबिलिटी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी ये बताती है कि वोटर्स के अंदर एक अजम्पशन है। अजम्पशन ये है कि मेल लीडर्स जो हैं वो डिफेंस पॉलिसी में बहुत स्ट्रांग है और फीमेल लीडर्स सोशल पॉलिसी में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बट ये पर्टिकुलर एजम्पशन जो है ये एक्चुअली क्रेडिबिलिटी डेफिसिट क्रिएट करता है फॉर वुमेन लीडर्स, जहां पे वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि नो नो हम किसी से कम नहीं है और वी कैन एक्चुअली एक्ट रूथलेसली एंड वी कैन एक्चुअली एक्ट एग्रेसिवली, जो कि हमने गोल्डा मायर के 1973 वॉर के केस में देखा था। शी हैड एन ऑप्शन कि नहीं आप बैकआउट कर सकती हो, आप डिप्लोमेटिक तरीके से डायलॉग्स करके आप वॉर को रोक सकती हो, बट गोल्डा मायर वाज वेरी मच क्लियर कि नहीं मेरे को वॉर करना है और मेरे को अपनी जो पोजीशंस हैं टेरिटरी है वो कॉन्कर करनी है वापस। थर्ड चैलेंज इज दैट इंस्टीट्यूशनल बैरियर जो कि डिप्लोमेसी में हमको देखने को मिलते हैं। 21st सेंचुरी चल रही है बट स्टिल डिप्लोमेट्स जो है एम्बेसडर्स जो है वो बहुत हद तक फीमेल्स नहीं हो पाती हैं। लार्जर हायर डिप्लोमेटिक पोजीशंस पर भी फीमेल्स बहुत कम देखने को मिलती हैं। इंडिया ने अपना रिकॉर्ड थोड़ा हद तक इंक्रीज करा है बट बाकी कंट्रीज अभी भी उसमें लैग कर रही है। तो जो फेमिनिस्ट आईआर स्कॉलर्स इसको बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन एसिमेट्री है इसके अंदर, जहां पे अगर विमेन स्कॉलर्स विमेन लीडर्स अगर एब्सेंट रहेंगे डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन से, उधर बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज कैसा कि जेंडर पर्सपेक्टिव आप पीस प्रोसेस में डाल ही नहीं पाएंगे। आप जो भी कोई भी इशू के ऊपर आप बात करेंगे तो वहां पे आप एक लार्जर उसका जो टॉक का जो एरिया है उसको आप बढ़ा ही नहीं पाएंगे और पॉलिसी को भी आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास एक फीमेल वॉइस नहीं होगी। तो साथ साथ विमेन लीडर्स को और भी बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, जैसे कि मीडिया स्क्रूटनी और जेंडर्ड नैरेटिव। विमेन लीडर्स को बहुत ज्यादा मीडिया स्क्रूटनी से गुजरना पड़ता है। काफी ज्यादा उनके बारे में बातें होती हैं कि ओके हाउ शी इज व्हाट साड़ी शी इज वेयरिंग और व्हाट क्लोथ शी इज वेयरिंग, और क्या कहते हैं उनके फैमिली में रोल क्या है, वेदर शी इज टेकिंग केयर ऑफ किड्स और नॉट, और वेदर शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर हस्बैंड और नॉट। तो ये सब नैरेटिव आप रेयरली देखोगे कि किसी मेल लीडर से ये पूछा जाता है कि क्या आप अपनी पत्नी का ध्यान रख रहे हैं या अपने बेटे का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं। और ऑल्सो अनदर मेजर चैलेंज इज दैट वो आईआर थ्योरी के अंदर एक स्ट्रक्चरल चैलेंज है। आईआर थ्योरी जिस तरीके से क्रिएट करी गई है, पावर, डिप्लोमेसी, ये सारे कॉन्सेप्ट ही बहुत ज्यादा मेल ओरिएंटेड बना दिए गए हैं। फेमिनिस्ट स्कॉलर जेएन टिकनर, क्रिस्टीन सिल्वेस्टर यही आर्ग्यू करती हैं कि ट्रेडिशनल आईआर थ्योरीज को बहुत ज्यादा रियलिज्म की तरफ डाल दिया गया है, जो पावर पे फोकस करेगी, मिलिट्री कैपेबिलिटीज पे फोकस करेगी और स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन पे फोकस करेगी। बट हमें साथ साथ ये समझना पड़ेगा कि आईआर इज नॉट जस्ट अबाउट मिलिट्री एंड पावर, इट इज ऑल्सो अबाउट ह्यूमन वेलफेयर। जेंडर बेस्ड वायलेंस को आपको कैसे कम करना है, आपको क्लाइमेट चेंज को कैसे एड्रेस करना है, आपको इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कैसे खत्म करनी है। फर्दर एट लास्ट टू कंक्लूड मैं यही कहूंगा कि जैसे कि हमने 1950s के बाद देखा कि इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत ज्यादा विमेन लीडर्स आए, डिप्लोमेट्स आए और वो रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, बट स्टिल वो रिप्रेजेंटेशन अभी भी बहुत कम है। विमेन लीडर्स फॉरेन पॉलिसी को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं। कुछ एथिक्स ऑफ केयर लेके आती हैं, कुछ नेगोशिएशंस में विश्वास करती हैं, कुछ ह्यूमन सिक्योरिटी पे विश्वास करती हैं और कुछ हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का मिक्सचर शो करती हैं। तो फेमिनिस्ट थ्योरीज ये बोलती हैं कि बहुत जरूरी है कि विमेन लीडर्स जो है वो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को साध कर चलें और इन दोनों को इंटीग्रेट करके ही आप एक बेटर पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ सकते हो। मोर ओवर अगर हम बात करें तो आज भी बहुत हायर ऑफिसेस के अंदर, यूएन ऑफिसेस में, बड़े बड़े डिप्लोमेटिक ऑफिसेस के अंदर, यूएन जनरल असेंबली, G20 समिट्स के अंदर फीमेल लीडर्स का रोल बहुत कम है, फीमेल लीडर्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। जिसके जैसे कि मैंने डेटा बताया कि G20 कंट्रीज में बस 2 ही कंट्री हैं, कनाडा और फ्रांस, जिनके पास फॉरेन फीमेल लीडर्स हैं, बट बाकी कंट्रीज के पास नहीं है। इधर अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें तो ग्लोबल साउथ ने शायद ज्यादा अच्छा राइज देखा है विमेन लीडर्स का रादर देन द ग्लोबल नॉर्थ। शायद यहाँ पे ग्लोबल नॉर्थ को सीखना पड़ेगा कि कैसे ग्लोबल साउथ, ऑल्दो दे क्रिटिसाइज इट फॉर द डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स विमेन, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, वायलेंस अगेंस्ट विमेन होता है, बट स्टिल ग्लोबल साउथ ने ज्यादा बेटर तरीके से विमेन लीडर्स का राइज देखा है। पहली वर्ल्ड की पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर श्री मावो बंद्रानाइके भी ग्लोबल श्रीलंका से निकलती है 1960s में। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर जो कि फेमस है बैटल ऑफ बेगम्स के लिए बिटवीन शेख हसीना और खलीदा जिया, जो कि पूरी कंट्री की डिक्टेट करती हैं पॉलिसी इन सिंस 1980s। उसके साथ साथ इंडिया की भी बात करें तो इंडिया ने भी बहुत अच्छे से काम करा है। वी हैव ऑल्दो वी हैव जस्ट वन प्राइम मिनिस्टर एज अ वुमेन, बट स्टिल देयर आर वेरियस वुमेन ऑन द लीडरशिप रोल्स एंड द डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म्स। अभी रिसेंटली हमने विमेन रिजर्वेशन बिल पास करा, जिसको लेके विमेन कैंडिडेट्स का रिप्रेजेंटेशन और बढ़ेगा और साथ में उनकी वॉइस भी पॉलिसी मेकिंग के अंदर बढ़ेगी।
एट लास्ट अगर हम स्कॉलर्स और एनालिस्ट के लिए बात करें तो आई थिंक उनको बहुत हद तक सोचना पड़ेगा कि जो कोर कॉन्सेप्ट है आईआर के, उनको आप किस तरीके से रीओरिएंट करिए टू इंक्लूड मोर फेमिनिन एंगल एंड एथिक्स ऑफ केयर अप्रोच। विमेन लीडर्स को सिर्फ टोकनिज्म के लिए आप इंकरेज नहीं करिए, आप विमेन लीडर्स को अपना सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए नहीं यूज करिए, आप विमेन लीडर्स को अपना पॉलिसी अरीना बढ़ाने के लिए यूज करिए। वो माइंडसेट ब्रॉडन करिए, आप विमेन लीडर्स के लिए जेंडर सेंसिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, जिससे विमेन लीडर्स और हद तक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म्स पर आए और फॉरेन पॉलिसी के अंदर आए और बेटर पॉलिसी मेकिंग हमें देखने को मिले। So on this International Women's Day, let us affirm our commitment to greater representation and empowerment of women in diplomacy. By weaving feminist perception into statecraft and giving women a full seat at the table, we forge a more stable and just world. Thank you so much. Thank you so much, Sanskar, for such a power-packed presentation on such a day. Thank you so much for that. We won't ask much questions, but just one question. So what do you think that how does media representation of women leaders affect their global political influence? When we talk of media representation of global leaders, हमें वहाँ पे ये देखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने खुद बताया कि किस तरीके से मीडिया में स्क्रूटनी रहती है विमेन लीडर्स की। आप उनको हर एक स्टेप पे देख रहे हैं कि कैसे वो कपड़े पहन रही हैं, कैसे वो अपनी फैमिली का ध्यान रख रही हैं, किस तरीके से अपने आप को कैरी कर रही है। तो उधर बहुत जरूरी है कि आप एक पर्टिकुलर तराजू पर ही मेल लीडर्स को और फीमेल लीडर्स को तोलिए। ऐसा इंदिरा गांधी के बारे में भी कहा जाता था कि इंदिरा गांधी ने जितनी फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस लिए, उन्होंने अपनी पर्सनल इमेज और डोमेस्टिक पॉलिसी के अंदर अपना और बढ़ाने के लिए किया गया। बट हमें जरूरी है ये समझना कि फीमेल लीडर्स को वो स्पेस देना चाहिए जिसकी वजह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपने आप को एक बेटर एनवायरनमेंट में ढाल पाए। Thank you so much, Sanskar. And one last question. You are connected from last 5 years, so please tell about your experience with us. Well, my experience was really good. ये मेरा शायद तीसरा टॉक है और बहुत अच्छा लगा। और मनीष सर का तो हमेशा सहयोग रहता ही है, साथ में पूरी जीएसटीएस टीम ने भी बहुत अच्छे सहयोग दिया। तो अच्छा लगा, वापस आए, वापस प्लेटफॉर्म पे बोला, 4 साल के बाद वापस बोल रहे हैं, तो इट वाज गुड, रियली गुड। थैंक यू। Thank you so much, and please stay connected with us. So now moving forward, and to help us reflect on today's discussion with a wider perspective, I would like to now invite our guest of honor to share few thoughts with us. Thank you so much, Manvi ji. Thank you, Sanskar ji, for such a well-researched presentation. आपने actually बहुत ज़्यादा बातें बताई women leaders के बारे में, reflecting on their policies, whatever impact they made on domestic politics and international politics. You've already spoken a lot about women in power, women in diplomacy, women in international relations. मैं जिस चीज के बारे में बात करना चाहूंगी वो ये है कि it would be more of a call for action. Provided this wonderful platform of GSTS, हम आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हम चर्चा कर रहे हैं वुमेन के बारे में। हमें पता है we've already had a good history of women leaders, और आपने प्रॉब्लम्स भी दर्शाए अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि whenever we have a woman leader, मीडिया जब क्वेश्चंस पूछता है तो ये पूछता है are your children doing well? But I've actually, out of my experience, I've never in any interview heard any male leader अब ऐसे एड्रेस करना चाहिए मेल लीडर को ऐसे पूछा गया, how well are you taking care of your family? I've never heard that. तो ये जो डॉगमा है, ये जो क्वेश्चन करने का स्टाइल है, ये जब चेंज होगा ना, we will actually change. Because our world, हमारा नेटवर्किंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया है, बट कहीं ना कहीं वो इंटरकनेक्टेडनेस वी आर स्टिल लैकिंग। तो हाउ शुड वी मूव टुवर्ड्स इट? हाउ शुड दिस इंटरकनेक्टेडनेस ग्रो, progress with each passing second, with each passing day? It cannot simply happen with half of the world's wisdom, right? We need to have women on the forte. We need to have their ideas, their talent, their wisdom, and the most important thing, their perspective
on the floor, to work better on policies, to work better on every possible thing. I feel, and our literature also speaks, कि जब women आए, when women came into international relations and diplomacy, we actually started talking about rights, human rights, climate. We started talking about. We started focusing on these things because before this, it was only hard power. It was military and all that stuff. So we see such a big change being brought in when women actually start participating. और ये since this lecture has started, दो बार ये चीज इस चीज का already जिक्र हो चुका है, but again to reiterate the fact and emphasize it strongly, according to the research by International Institute of Peace or something, I guess, peace treaties, peace agreements are 35% more likely to last beyond 15 years when they have women participants in it. It is a big thing. We believe in science, we believe in researchers. See what our research speaks. So, taking this forward, and I think I'll have just this moment only. Itna hi time mein paas hoga. I really congratulate you, Sanskar. It was a very well-researched presentation, and through your presentation, and honoring this wonderful day, honoring this wonderful platform, and under the leadership of Manish sir, I really congratulate everybody on organizing this very beautiful, very enlightening lecture, and आप लोग ऑर्गेनाइज करते ही रहते हैं, तो सबको बहुत बहुत बधाई उस चीज के लिए. इस फोरम से मैं सभी से यही आग्रह मेरा रहेगा कि इट इज अ टाइम, इट इज अ कॉल फॉर एक्शन आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन. इट वुड रियली मैटर कि हम लेक्चर के बाद, हम इस प्रेजेंटेशन के बाद, हाउ वी एक्चुअली एक्ट. ये जो when a woman takes up a very powerful leadership position और कुछ भी accolade उनको मिलता है, तो ये headlines नहीं होना चाहिए. It should be the standard. This should be the action and the mentality we should carry forward. So this was all from my side. Thank you so much. Thank you so much for this platform, for inviting me. Thank you so much for this wonderful presentation and everybody who's joined. Thank you, Dr. Manish. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your thoughts and for your wishes for us. Thank you so much. Now, moving forward, I would like to invite our next speaker, Ms. Kusum, to give a brief about her topic. Good evening, everyone, and I heartfully congratulate the GSTS platform for successfully organizing this special talk on today's precious day, that is International Women's Day. And I also extend my heartfelt thanks to Vasundhara ma'am and Sanskar ji for presenting this impactful presentation today in front of everybody. And not wasting another minute, I would like to bring to light my topic for the next Sunday. It is titled Orality, Cultural Memory and Vernacular Knowledge in the Rajasthani Tale of Paheli. So magic, myth and mysteries have existed since ancient times. And it is no surprise when we visit our villages and find out some of the most intriguing tales, like, for instance, the one where the moon shone the brightest for the wolves, or a tree surrounded by holy threads cured someone from ages old ailment. So, one such mystery that was traced by a well known folklore figure and storyteller, Vijayan Detha, is of a newlywed bride with whom a ghost falls in love. Exploring more on this very tale of dilemma, my presentation would delve deeper into its circulation across media through the films Duvidha, directed by Mani Kaul in 1973, and Paheli, directed by Amol Palekar in 2005. The idea is to retain this culturally embedded tale and study its production in different times, while simultaneously weaving a thread of narrative that connects both through oral traditions, visual aesthetics, and cultural dynamics, while slightly alluding to its contribution to the Indian knowledge system, IKS.
And drawing upon the title of this very presentation, we would also discuss themes of cultural memory and remembrance and how it cultivates in our contemporary times to appeal to the larger audience, especially the women who, in marriage and society, often found themselves standing at juxtapositions while attending to the customs, rituals, and practices of that particular culture they belong to, and in this case, a small village of Rajasthan. So that would be my presentation for the upcoming Sunday. And I request you all to be a part of it and encourage me and motivate me and also guide me through this. Thank you so much, everyone, and all the best to all the members of the GSTS family. Thank you so much. Thank you so much, Kusum. And I request everyone to join for next week for Kusum's topic on magic, myth, and mystery.